आवाज कसा येईल? Yes, hello. Hello, I'm audible. ये बोलिंग लगती है। आवाज आते क्या? नाही. काम चालू है। ये ऊपर ये रहती नहीं तो ये पलट होती है। हाँ, सुनिएगा। Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon all. Hello. Hello. Ashish sir. Hello, good afternoon. Hello, Ashish sir. आवाज येतोय माझा? हा, येस सर, तुमचा आवाज येतोय. तुमच्याकडे जे याचं व्हॉइसचं स्पीकरचं ऑप्शन आहे, तुम्हाला बोलायच्या वेळेस ते ऑप्शन फक्त क्लिक करावं लागेल, म्हणजे तुम्हाला बोलता येईल. ठीक आहे. बरं. मी इकडून अनम्यूट केलाय तुम्हाला, पण समजा बरं. पुढे असं झालं, म्यूट झालं माझ्याकडनं, तर जिथे व्हिडिओचं ऑप्शन आहे तिथेच स्पीकरचं ऑप्शन आहे. एकदा सर स्पीकर तुमचा व्हिडिओ ऑन करा ना प्लीज. एक मिनिट. Done? Yes, let me see. Yes, sir. Yes, sir. So can you see me now? Yes, yes, sir. I can see you. Okay, fine. So, Okay. त्याच्याच लेफ्ट साइडला there is one icon of that speaker. Okay, just unmute yourself when you are going to talk. Okay, because I am going to mute all participants so that there is no disturbing voice background. Okay, sir. Sir, please unmute yourself. Ashish sir, please unmute yourself. Now you are in mute. Yes. Yes. I done that now. Yes, yes, yes. Okay, now it's okay. Fine. So let's wait for 5 minutes because most of the people is joining. Ashish sir, please disable that annotate option. Yesterday we talked about it. Annotate option. Okay.
हाँ भाई तू माझ्या पैसा आलाय गेला म्हणून जर सरबत करते प्लीज प्लीज कोण मी जेवण करायचं 12:30 कारण बिर्याणी मागे गरम अगं मी मीटिंगला आहे ना ऐकत नाही काय बंद करून ठेवते रिअल मी कुठला गेला Hello. Yes, hello. I can't hear that. Hello. I can't Hello, hear there is it. no voice, ma'am, because we are not speaking. That is why you can't hear. Okay, okay. Hello, Ashish sir, can you hear me? Yes, I can. Okay. Sir, I think we have to start the meeting because I think time is money and the time is going on. Okay. So, good afternoon to all and welcome again to this webinar 3. The topic of the webinar is research and my profession. Okay. So it is regarding research paper writing. The person who is really interested in research domain, so this webinar will definitely gives you a lot. So let me introduce our facilitator. Name of the facilitator, we are really privileged to have Dr. Ashish Linge from CPN Berar College, Nagpur. So thank you very much, sir, for being with us. Let me introduce you. Dr. Ashish Linge is working as assistant professor and training and placement officer with Department of Business Management, CPN Berar College, Nagpur, since 2001. And he has experience of 18 years experience of his teaching and training experience. And one thing we must appreciate is he delivered lecture more than 1000 workshops on research methodology and statistical in more than 100 institutions across Vidarbha. He trained more than 10,000 PhD research scholars.
and he has worked as a resource person in several faculty development programs, orientation programs, and refresher programs, ICT workshops, and IQAC workshops, etc. He conducted several campus recruitment programs, soft skills workshops, resume writing, creating professional PPTs, emotional intelligence, etc. So he's working as a trainer for pre-PhD coursework for 5 universities, and you will definitely get to know that how professional he is and how he has a skill to engage to you all. Really, I am very happy, sir, that you are here with us to guide, and I feel very proud that we have a guide like you. So thank you very much. Thank I would like to request to you, please start the presentation. Right, ma'am. Thanks for introducing me. Hello, everyone. I hope you are fine and safe at your places. Please, I will like to all to please keep your papers and pens ready because we are going to have very meaningful and important discussions today. We are going to have discussions on the topic that you can see on the screen. I'm going to share some important tips on research paper writing, you can say. And I will take utmost care you will have something to take away from today's session. So here we go. For next 60 minutes or so, we'll be having discussions on how to write research paper in scientific. So before getting into part, I just want to start with some starting facts with regard to research paper writing and publication. Just go to this statistics. You can read on the screen. About 3 lakh to 5 lakh research papers have been submitted for publication purpose in India every year. You know, that's a startling fact. And most important part over here is out of this, 72% papers are rejected by the editors and publishers. So one of the exciting facts you can say, it's not about the format that research scholars have not been following. They are not pretty, conversant with conventions that your peers are expecting and all. We'll just take a quick look over what is on cards for today's discussions for next 60 minutes. Structured my presentation into 6 apparent sections, as you can see. The first section will be having discussions on importance of research academics all. Then in the second section, we'll be having discussions on ways to carry out educational research. We all happen to be having educational research background. The third part will be having discussions on types of research papers. And the fourth part, possibly the core part of our today's discussion, section 4, 5, and 6, you can say. Fourth section will be having discussions on steps in writing a research paper. And the part will be having discussions on the standardized format. There are standardized formats with regard to papers, you can say. So I'm going to share that particular format with you today. And Hello? Hello, sir? Hello? Hello. Hello, ma'am. Can't hear properly. see me? Wait. Ha, hello, sir. ऐकू येतंय माझं? Yes, voice sir. is not Now, clear, yes. ma'am. My voice is not clear. Now, is it okay? So can everyone see the screen? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, so shall I proceed, ma'am? Yes, sir, please. So these are the 6 issues on cards for today's discussions, and we are going to have discussions on all these 6 sections one by one. We are on to the first section, and in this section we are going to have discussions on importance of research for academicians like we people, you can say. So these are the 4 pointers that I want to share with you. Why do we carry out research? The first part, I believe, is to fulfill our academic requirements. You know very well that academicians and research, they hand in hand.
The research is supposed to be one of the indispensable part of any teaching career. Like we people, we are hardcore academicians, and research is one of the important part. We are teachers and lecturers, and pursuing PhD is one of our major agendas of our lives, you can say. And I believe most of you might have completed your PhD. Most of you must be planning it. So PhD is supposed to be the pinnacle of our career, you can say. So while pursuing PhD, there is one mandatory requirement. While pursuing PhD, most of the universities recommend that you're supposed to write research papers on the topic that you have been working on. So to fulfill academic requirement in this particular sense, we're supposed to develop and publish our research papers. The second part, to improve self-image. What does मैं this कुछ mean? नहीं बोलने वाली हूँ, उसको क्या लगता है मैं भेजने वाली हूँ, उन्हें आया वन में यहाँ करेंगे, उनका सारा सार्क जाऊंगी उन करूँ करके उन्हें हमारा काम छोड़ के ऊपर चढ़ के आया वन में मैं मेरा काम कराती हूँ. So to improve self-image, this is the second part. You know very well कि हमारा जो CV होता है टीचर्स का, उसमें अगर रिसर्च से रिलेटेड कुछ दिखता है तो ऑब्वियसली CV में 4 चांद लग जाते हैं, एक वेटेज आ जाता है. So research can be considered as a very substantial value addition activity for a teacher's career, you can say. थर्ड पार्ट, करियर एडवांसमेंट एंड प्रमोशन. यू नो वेरी वेल कि आपका प्रमोशन है या रिक्रूटमेंट है, इसमें भी आपको अगर रिसर्च आपने किया हुआ है, कुछ मीनिंगफुल पब्लिकेशंस किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपके सीवी में 4 चांद लग जाते हैं. आपका कैंडिडेचर जो है वो सब्सटेंशिएट हो जाता है. Substantiate your candidature in interviews. So in any recruitment process, research has got its own significance and importance. Just to cite you a few examples, one of my colleagues, he was trying for abroad placements as a lecturer only, and there he found that he was badly struggling because there was absolutely nothing in his resume as far as research part is concerned, and that is why he was not he was not able to leverage on the opportunities. तो कोई भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हो academicians के लिए, उसमें तो research is one of the indispensable part. Recruiters and interviewers, they are typically asked questions only on research. What kind of research activities you have undertaken, how many papers you have published and submitted, how many papers and where have you submitted those particular papers and all. और बहुत सारे रिक्रूटर्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं उसमें ही 2-3 कॉलम्स तो आज की डेट में रिसर्च से रिलेटेड ही होते हैं. और एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंटली रिक्रूटर्स देखते हैं कि अपने स्कोपस और WOS, जिसको वेब ऑफ साइंस कहा जाता है, उसमें आपने पेपर सबमिट किए क्या, पब्लिश किए हुए क्या. दिस इज व्हाट टिपिकली रिक्रूटर्स आर दिस डेज लुकिंग फॉर. So this way academicians must have research agenda on their cards, and they must have something in concrete in their resume. So this is how academicians resume and research, these are inseparable, you can say. और एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरा और एक कलीग है, वो अब्रॉड में कुछ कोशिश कर रहा था, और वहां पे उनका जो फॉर्म था रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, उसपे एक कॉलम रिसर्च एजेंडा फॉर नेक्स्ट 3 years, आने वाले 3 साल में आप क्या रिसर्च करने वाले हो वो हमें बताइए पैराग्राफ में. तो obviously recruiters these days are looking for research avenues in your resume, you can say. So academicians resume can't be separated from research. Now we are going to have discussions on कि researcher यानी हम teachers और research, हम दोनों का connection क्या हो सकता है, और प्लेटफॉर्म से हम लोग एक्टिविटी जो है वो लेवरेज कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज एज ए academician we are supposed to write and publish research paper. With this we get confronted with research activity. The second part, हम लोग academicians से और करियर एडवांसमेंट के लिए हम लोग PhD प्लान करते हैं या कर भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे करियर में PhD करना ये एक रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है. तीसरा पार्ट, PhD कंप्लीट होने के बाद, अवार्ड होने के बाद, यू एज्यूम अ मच बिगर रोल, यू कैन से, इन द फॉर्म ऑफ ए सुपरवाइजर. जब आप PhD सुपरवाइजर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. आपके अंडर में सेवरल डाउन लिंक्स, और वो डाउन लिंक्स को दीज आर कंसीडर्ड एज योर रिसर्च स्कॉलर्स, और आपको एक साथ 8 रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड करना होता है. That particular sense as well, you must have some knowledge regarding research. And the last one,
हम लोग एकेडमिशियंस है, तो हम लोग बहुत बार फंडेड कुछ प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स जिसको कहते हैं गवर्नमेंट, एंड देयर आर सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव बीन funding your research activities, research projects you can say. As far as Indian context is concerned, we have got two types of projects, major and minor. Minor project का मतलब ये होता है कि जिसका फंडिंग वैल्यू 5 लाख से 15 लाख है, government may assign you this kind of allocation to undertake a research, obviously which has got some social application, and you are supposed to justify your research idea, and government or the other agencies, they are going to fund your project. और जहां तक मेजर प्रोजेक्ट का सवाल है, 15 लाख के ऊपर की जो फंडिंग वैल्यूज होती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो एज ए एकेडमिशियन हम लोग ये प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक कर सकते हैं, और इससे ऑब्वियसली एक सोशल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल हो जाता है, और हमारे सीवी में भी कुछ वेटेज आ जाता है। Going down to second section now. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल रिसर्च में रिसर्च करने के तरीके क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द वेज टू कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च। देखिए, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करने की 3 पद्धति हो सकती है, और इसको ब्रॉडली हम लोग रिसर्च डिजाइन कहते हैं। रिसर्च डिजाइन 3 प्रकार के हो सकते हैं। द फर्स्ट टाइप इज कंसिडर्ड एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव वन, द थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल। I'm going to explain you exploratory and experimental in a brief way, because we are going to report on research. Typically, we undertake descriptive research. Firstly, we'll just have quick discussions on exploratory and experimental. The first part is called as exploratory. As the name indicates, it is about exploring one particular concept. This is out and out a theoretical kind of research. This is also considered as desk research. And one of the keywords for defining exploratory research, this is qualitative research. Rarely we undergo any kind of number crunching and all. यहाँ पे हम लोग जस्ट डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली आप एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर केस के फॉर्म में आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है एक्सपेरिमेंटल। आज एजुकेशनल में हम लोग बहुत सारा करते नहीं है, पर इट इज देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी हम लोग ये कर भी सकते हैं, पर रेयरली वी डू दिस। अभी बात करते हैं हम लोग ज्यादा करते हैं एजुकेशनल रिसर्च में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एंड हियर आफ्टर आई एम गोइंग टू हैव सम एलाबोरेट डिस्कशन ऑन व्हाट इज बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो हियर वी गो, वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशंस ऑन व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। So one line definition of descriptive research, I believe, is the survey method. One of the methods you can say in descriptive research is conducting surveys. और हम लोग एजुकेशनल रिसर्च में जब रिसर्च करते हैं तो टिपिकली वी रिलाई मोर ऑन कैरिंग आउट सर्वेज, यू कैन से। सर्वे का मतलब आपको मालूम है, दिस इज प्रीटी कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजीज, एंड एज यू कैन अंडरस्टूड इट, हम लोग एक टॉपिक लेते हैं एंड वी डिफाइन अ टारगेट पॉपुलेशन, and then after taking into consideration our objectives, hypotheses and variables, we design a questionnaire. We administer that particular questionnaire on the potential respondents. We generate data, we process it, and we Hello, ma'am. Voice is not clear. it in the form of finding. So this is what basically read it in my own words. आज की डेट पे सर्वे कंडक्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक है ऑनलाइन सर्वे और दूसरा है ऑफलाइन सर्वे। आज की डेट पे दोनों प्रीवेलेंट है। बात करते हैं ऑनलाइन सर्वे की, और आज की डेट में जैसे हम लोग सब लॉकडाउन में है कोविड-19 की वजह से, तो आज आपके व्हाट्सएप पे भी रोज कोई ना कोई गूगल फॉर्म आ ही रहा होगा जिसको हम लोग ऑनलाइन सर्वे कह सकते हैं। कोविड-19 को लेके पिछले 15 दिनों में तो मैंने शायद 8 से 10 गूगल फॉर्म्स को रिप्लाई किया होगा। इतना सर्वे चल रहा है because it is online through web, you can say, or through electronic media. Hello, Google Ashish Form sir, तो आप can I सबको- interrupt you? Hello, Ashish sir. Yes, please. Oh, sir, your voice Yes, is please, breaking please. and some participants are not able to hear you. So, is it possible for you just means log out from the Zoom app and then again join? So, it would be work. Okay, I'll do that, ma'am. Yes. I'm doing it. Yes, ma'am. Please. Thank you, ma'am. My pleasure. Wait for a minute. He'll join as soon Yes, as ma'am. possible, please.
Bye. In the meanwhile, maybe request all to please mute themselves. Kalpana ma'am, on your end also you can mute all. Please mute all. You are muted, Kalpana ma'am. Please unmute yourself. Kalpana ma'am, you are muted. Please unmute yourself. Oh, sorry. Extremely sorry. Actually, I have muted the participants, but the participants who are new, they are not muted. Okay. So what happened? If you are joining, then please mute yourself. Then it would be better for all participants. They can hear because so much background voice is going on. Isn't it? Shweta? Yes. Please mute yourself. On your left side, there is one icon of speaker. Okay. Just mute yourself so that we can't hear your background voice. Hello. Hello. And some of the participants I found that they actually can't hear because Priya Patole is there. I don't know what's the problem because there is no icon of speaker in front of them. Hello, Kalpana ma'am. Yes, Shweta is talking. Yeah. Actually, can I request you something? All Yes. the participants that if you are not able to, if you are not able to listen, then please don't interrupt the speaker in between. I think this is a recorded version. So Yeah. if you are unable to listen him, then you can go again, go back and like you can you can listen the recording. But it's not good to interrupt someone. मीटिंग चालू आहे माझी. Yeah. Hello. Because some of the participants can hear only his voice is breaking. Yeah, Okay. and So like because it's not I good to think interrupt him in between. So I think we can listen or we can see the recording afterwards too. Yeah, thank you. fine. Thank you very much, Shweta. Yes. Yes, Ashish sir is joining.
Kalpana madam, Yes, yes, sir. I can hear you. can you hear me now? Yes, yes, sir. Yes, sir. Please share your screen. And turn on your video, sir, please. Yes. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. It is okay. Okay, let's start. Okay. I'm resuming the session now. We've been Yes. talking about survey. So I was explaining you, there are two methods of carrying out a survey, and typically in educational research we do this. So there are two modes of conducting survey. The first one is obvious, that is online, and another one, the conventional and traditional one, is offline. So these days, most of the research scholars, they have been practicing on online surveys, conducting online surveys, and you must be aware of Google Forms. Google Forms, most of the research scholars, they have been leveraging these days for conducting social surveys, general awareness surveys regarding COVID and all. My recommendation personally is offline, because online, there are several limitations of conducting online surveys. We prefer online surveys whenever the topic is of general nature and the participants are of general public, you can say. But while carrying out any serious level of academic research activity, typically we don't undertake any general nature survey. We typically have, a very specific and defined audience that is called as target population. So that is why, Google Form is pretty not, convenient method for conducting any kind of serious research activity, you can say. In offline, scheduling is possibly the best method of conduct. What basically scheduling is a face-to-face confrontation of the researcher with the target population, you can say. Means as a researcher, we carry our forms with us, and then we interact with the potential respondents. Whatever responses they have been giving, we are being recording those particular responses. If your respondents are having any kind of queries, you are in a face-to-face confrontation, so you can resolve all the possible queries, you can say. So for conducting any kind of serious and academic research activity, like writing a research paper or a PhD, you can say, typically a strong recommendation is carrying out a survey and collecting data by resorting to scheduling. Another disadvantage of conducting online surveys, that is Google Form is one of the methods that you are pretty acquainted with. So along with Google, there is another method that is called as Microsoft Forms are also there. There are some available for conducting online surveys, like SurveyMonkey is there. Then ProQuest is another portal from where you can conduct online surveys, but there are several limitations of conducting online surveys. Another limitation of conducting online survey, you might have by far prepared those particular Google Forms, and one of the peculiarities of Google Forms is you are supposed to ask a question and you are supposed to provide some sort of multiple choices. This is possibly the biggest disadvantage, because whenever you are generating data, only categorical data, which is typically reckoned as, so category data is considered as nominal data, and nominal data is the entry level data. And over here there are few tools are there available for processing your categorical data, that is qualitative data, and statistical treatment you can't give to your data. And that is why there is a strong recommendation that you should go offline for conducting any kind of serious academic research activity, like writing a research paper or conducting a PhD, you can say. So this is one line concept of what basically descriptive research is. Descriptive research focuses on what is happening. Over here, we are simply reporting what you have observed in the field. You are simply reporting what you have seen. You are not analyzing as such. Whatever you have seen, you are processing the data, you are coming up with charts, tables, data condensation, summary statistics, and you are simply presenting it. So descriptive research is more about collecting the data and processing the data and simply reporting what you have observed on the field. One of the examples of descriptive research in educational research, you can say, the topic over here is just for the sake of example, awareness of COVID-19 amongst middle school students. Middle school students को
कोविड-19 के बारे में कितना अवेयरनेस है, कितनी हद तक अवेयरनेस है, if you wish to survey this and typically in a defined geographic pocket. So these are few sample questions that you can ask in your, these are only 4 sample questions, otherwise you can have 20-25 such questions. So you may talk about origin की ये virus है या bacteria है और ये कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी, what are the symptoms of a patient you can say is suffering from COVID, then what types of zones government has come up. So these types of questions you typically ask. You you administer this particular questionnaire and then you start processing. So your processing will be only in the form of this 4W1H model, you can say. So this is how you will report it. So typically you are going to seek answers to this 4W1H model in descriptive research: who, what, when, where, and how often. So this is one line definition of descriptive research, you can say. As far as reporting part is concerned, डेटा को प्रोसेस करके जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में हम लोग टिपिकली 2 सेंस में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिपोर्टिंग करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डेटा विजुअलाइजेशन, और एक आम आदमी की भाषा में we typically call it as data presentation, or you can say it as graphical presentation of data. Over here, whatever data that we have generated, we are converting or condensing it into statistical tables, and again we are transforming those particular tables into some charts, diagrams you can say, or some graphs you can say. So this is typically considered as a data visualization. Means in descriptive research, what do typically we do? We condense data and we typically pictorial presentation of data. And the second part that we do while analyzing the data and while following your descriptive research is summary statistics. It is more about data condensation and coming up with some representative numbers, you can say, your statistics, you can say. What basically summary statistics? You might have heard of mean, mode, medians, then standard deviation, variance, skewness, kurtosis. Whenever you start reporting this kind of numbers, this is typically considered as summary statistics, and these are 1 or 2 figures which have been representing the whole set of data. So that is why it is called a summary statistics. It is one single number you are coming up with, and that one single number will represent the whole set of data. Like you have administer thousands of such questionnaires, and you are typically resorting to coming up with particular averages, you can say. So summary statistics deals with 3. The first one is computation of averages. There are 6 types of averages, you can say. Mean, mode, median, that you are pretty conversant with. Along with that, 3 more averages are there in the form of geometric mean, harmonic mean, and weighted average. And the 7th one is moving average. So you typically start, presenting the whole set of data in one particular number that is called as the summary statistic, that is averages. Then you may convert your data in terms of percentages, and then you may calculate the frequencies, how particular phenomena has been occurring and how frequently, how often it has been occurring. So whenever you start presenting data in this particular sense along with graphical presentation, this is what is called as typically your descriptive research. And educational research में generally हम लोग इस प्रकार से data का presentation करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से एजुकेशन में रिसर्च किया जा सकता है. जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, वेरी ऑनेस्ट, 1 घंटा जो मुझे दिया गया है ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, this topic is quite comprehensive, and I'm just trying to present all these particular things in a capsule form, you can say. So over here I'm suggesting you some few ways, you can say, कि जहाँ पे हम लोग एजुकेशनल रिसर्च में किस प्रकार से descriptive research कर सकते हैं. We may resort to comparative studies in descriptive research. As you can see on the screen, there are a couple of topics I have already cited. The first topic is comparison of IQ levels of male and female students. One of the examples, you can say, you may resort to comparative studies while carrying out any educational research. Over here, you may, compare gender-wise, education-wise, or you can compare it, geographic pocket-wise, rural, urban counterparts. You can compare marital status. You can consider. There are so many other parameters on the basis of which you can compare. You can carry out the comparative studies, you can say. Another possibility of conducting
research in academics you can say or in education you can say examining relationships. This is one of the areas कि जहाँ पे आप पेपर तैयार कर सकते हैं along with comparative studies. Another one is pretty common and popularly used, that is examining relationship. The first topic is a couple of examples as you can see on the screen. Relationship between IQ and EQ of school students. This is just one of the examples कि यहाँ पे हम लोग ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका IQ ज्यादा होता है उसका EQ भी ज्यादा होता है क्या? And we are just trying to prove this statistic. Another example, as you can see on the screen, relationship between parents IQ and their wards IQ. यानी अगर मम्मी डैडी ये दोनों में से अगर कोई होशियार है तो क्या बच्चा भी होशियार होता है? या फिर वो बच्चा अगर होशियार है तो वो किसकी वजह से होशियार है, पापा की वजह से या फिर मम्मी की वजह से? ये अगर यानी ये जो IQ लेवल है ये इनहेरिट होता है क्या बच्चों में? अगर बच्चों के पेरेंट्स का IQ लेवल अगर कम है तो क्या उसका असर भी बच्चों पे होता है? क्या उनका भी IQ लेवल कम होता है? This is one of the interesting examples you can see. So this way we can examine relationships as well. The third avenue that you can leverage on, evaluating effectiveness of one particular thing. हम लोग कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज, उसका सही में असर हुआ क्या? ये अगर चेक करना है तो ऑब्वियसली रिसर्च करके हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं. As you can see, 3 topics I have mentioned over here. The first topic is effectiveness of a training program. कि आप इतने सारे ट्रेनिंग, जैसे डाइट इज नोन फॉर trainings only, and you have been undergoing such kind of training programs all across the year. You might be organizing on your own. तो वो ट्रेनिंग का सही में फायदा होता है कि ऐसे ही टाइम पास हो जाता है और पैसा बर्बाद हो जाता है. अगर आपको ये दूध का दूध पानी का पानी करना है तो obviously you wish to check the effectiveness of a training program. So in this particular sense you can resort to evaluating the effectiveness of that particular training program. And after every training program you might have observed that the organizer generally feedback लेते हैं और वो फीडबैक प्रोसेस करना इज वन ऑफ द रिसर्च स्किल्स यू कैन से. वो फीडबैक ले लिया आपने और उसको सिर्फ आपने ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें ना जेन्युइन फीडबैक नहीं मिलता है. गेटिंग मी? उसको अगर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करके अगर कुछ मीनिंगफुल पैटर्न्स निकालते हैं तो शायद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम लोग जो टाइम और पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके सही में रिटर्न्स मिल रहे हैं क्या. सो इफेक्टिवनेस निकालने के लिए जस्ट एक मुझे अभी याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ कि इफेक्टिवनेस निकालते कैसे हैं. इफेक्टिवनेस निकालने के लिए आपको 2 एंड पे डेटा चाहिए. एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो ट्रेनिंग से पहले का डेटा और ट्रेनिंग के बाद का डेटा. आपके पास अगर 50 पार्टिसिपेंट्स है तो उनका नॉलेज वो ट्रेनिंग पर्टिकुलर एरिया पे ट्रेनिंग होने से पहले कितना था और ट्रेनिंग होने के बाद कितना है, ये अगर हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं. और इसमें आप कहीं पे नोट भी करके रख सकते हैं कि इसके लिए हम लोग ना पेयर्ड टी टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं और उससे ये पता चल जाता है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम सही में इफेक्टिव था क्या. मैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम वन ऑफ द एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ. जो जो भी पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इवन आज का भी मेरा वेबिनार का इफेक्टिवनेस है क्या, ये अगर कल्पना मैम को जानना है तो पॉसिबली मेरा वेबिनार शुरू होने से पहले आपको रिसर्च पेपर को लेके कितना नॉलेज था. अगर कल्पना मैम आपको 50 MCQ फॉर्म के क्वेश्चंस दे देगी और आपको एक टिक मार्क करने हैं और मैडम असेसमेंट कर लेगी, आप पूरे 100 लोगों के मार्क्स मैम के पास है ये वेबिनार शुरू होने से पहले. अभी ये वेबिनार खत्म होने के बाद फिर से मैम आपको उतने ही डिफिकल्टी लेवल का फिर से एक फ्रेश क्वेश्चन देगी. आपके पास अभी 2 एंड पे डेटा है, एक वेबिनार होने से पहले और वेबिनार होने के बाद. और इसके बाद ये जो डेटा आएगा यानी 50 पार्टिसिपेंट्स में उन 50 पार्टिसिपेंट्स का हमने 2 टाइम पॉइंट्स पे डेटा जनरेट किया है, बिफोर एंड आफ्टर, जिसको प्री पोस्ट कहते हैं. और ये डेटा को हम लोग ये दोनों डेटा के मीन निकालेंगे और इसके ऊपर फिर हम लोग पेयर टी टेस्ट एडमिनिस्टर करके ये पता चल जाएगा कि मेरा आज का वेबिनार जो है वो इफेक्टिव था या नहीं. और ऐसे इसी तरीके से हम लोग क्लासरूम में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं या कोई पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं तो वो इफेक्टिव है या नहीं है, ये जानने के लिए भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं. और रिसर्च पेपर लिखने के लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एवेन्यू अवेलेबल है एकेडमिशियंस के लिए. तो मैंने 2 सेंस में बात की है कि एकेडमिक यानी आप जैसे टीचर्स रिसर्च पेपर लिखने के लिए कौन से प्रकार के रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं. जैसे मैंने आपको पहला बताया कि आप कंपैरेटिव स्टडीज प्लान कर सकते हैं. दूसरा मैंने बताया आपका इफेक्टिवनेस आप इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी चीज का. तीसरी मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट मेजर करना. इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. देयर इज ओनली थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. यू कैन से कपल ऑफ एग्जांपल्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. पहला टॉपिक जो मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल करके साइट किया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग और लर्निंग एबिलिटी आप बोल सकते हैं.
कि सही में ये लॉकडाउन की वजह से उनका जो लर्निंग एबिलिटी है उसमें फर्क पड़ा है क्या। दूसरा जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ होना चाहिए एक्चुअली, इम्पैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी, कि गवर्नमेंट ने जो न्यू अपनी एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट की हुई है उसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे कुछ फर्क पड़ा है क्या और नौकरी लगने का प्रमाण सही में बढ़ा है क्या, क्योंकि दैट इज द बेसिक पर्पस कि जिसकी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्लोट हुई थी। इफ यू विश टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिसी डिसीजन यू कैन से, you can resort to a kind of concrete research and you can always develop a paper on this particular theme. The fourth one is assessing awareness या फिर knowledge test करना। और typically educational research में आप देख सकते हैं दो टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे है। पहला टॉपिक है अवेयरनेस ऑफ कोविड अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। थोड़ी देर पहले भी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, ये मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हो या हाई स्कूल के हो या जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इनमें कोविड-19 के बारे में कितनी जानकारी है, इसका हम लोग एक डिपस्टिक सर्वे कर सकते हैं और ये इसके लिए गूगल फॉर्म तो काम कर सकता है शायद। दूसरा टॉपिक जो है ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितने, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या मराठी लैंग्वेज हो, इसकी प्रोफिशिएंसी अगर आपको चेक करना है तो ऑब्वियसली हम लोग एक नॉलेज टेस्ट डेवलप करेंगे और उससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यू कैन से। अभी बात करते हैं एज एकेडमिशियन हम लोगों को कौन रिसर्च डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स जनरली हम लोग बनाते हैं, इससे ज्यादा भी है बिकॉज वंस यू गेट इनटू पीएचडी ना तो पीएचडी करते वक्त इतने सारे रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। पर अगर ब्रॉड सेंस में बात करते हैं तो 4 डॉक्यूमेंट से हमारा ज्यादा पाला पड़ता है। द फर्स्ट वन इज यू आर सपोज्ड टू राइट रिसर्च पेपर। Second one is if you are planning PhD, then the first document that you are supposed to prepare is the synopsis. Then obviously your research thesis or dissertation you can say. And the fourth one is a project report. जो major minor fund projects होते हैं उसका हम लोगों को रिपोर्ट बनाना होता है। Again that is a research document. तो ये 4 डॉक्यूमेंट से ज्यादा पाला पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोग समरी लिखते हैं कभी या एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, वो भी कुछ एग्जांपल्स है आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पे। पर मुझे लगता है ये 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिसके साथ हमारा ज्यादा पाला पड़ता है। ये 4 में से आज मुझे जो बोला गया है वो मैंने ऑलरेडी येलो में हाईलाइट करके रखा है कि रिसर्च पेपर कैसे तैयार करते हैं, उसको लेके हम लोग अभी कुछ इनपुट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से आगे एक्चुअली मेरा आज का कोर्स सेशन शुरू हो रहा है। अभी तक ये इंट्रोडक्शन फॉर्म ऑफ मैनेजर्स आपको एक जिस्ट बता दिया और यहाँ से आगे हम लोग लगभग और आधा घंटा या 40 मिनट तक बात करेंगे कि रिसर्च पेपर बनाते कैसे, उसके कन्वेंशंस क्या है और साइंटिफिक तरीके क्या है। इनटू द थर्ड सेक्शन नाउ। रिसर्च पेपर लिखने से पहले ये समझना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं। अगर आप गूगल करते हैं, गूगल की एक सर्च विंडो में आप सिंपल कमांड देते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स, गूगल विल प्रोवाइड यू लैक्स ऑफ पेजेस, 22 लाख पेजेस आते हैं, यू नो यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस। बट ये 22 लाख पेजेस में जो मिलेगा वो शायद हमारे कुछ काम में आए। आपको एनालिटिकल पेपर, बेसिक पेपर, हिस्टोरिकल पेपर, ऐसी कुछ चीजें मिलेगी जो शायद एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगी। बट जब रिसर्च पेपर लिखना है तो मुझे नहीं लगता वो सब नॉलेज जो है इतना काम का है। और रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए जो टाइप्स ऑफ पेपर्स हमको मालूम होने चाहिए, मुझे लगता है हम लोगों को ये 3 प्रकार मालूम होने चाहिए, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एज ए एकेडमिशियन अगर हमको रिसर्च पेपर तैयार करने हैं तो ये 3 ऑप्शंस है और मुझे लगता है पहले 2 ऑप्शन हमारे ज्यादा काम के हैं। आप देख सकते हैं रिसर्च पेपर के 3 प्रकार है। पहला है ओरिजिनल पेपर जिसको इंपेरिकल पेपर्स भी कहा जाता है। दूसरा है आपके रिव्यू आर्टिकल जिसको थियोरेटिकल रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर भी कहा जाता है। और तीसरा है फुल लेंथ पेपर। फुल लेंथ पेपर जनरली और कन्वेंशनली हम लोग बनाते नहीं है, तो एज ए एकेडमिशियन हमारा पाला 2 पेपर से ज्यादा पड़ता है। एक है ओरिजिनल पेपर जिसको इंपेरिकल कहते हैं और दूसरा है रिव्यू पेपर। तो ब्रीफली मैं समझा देता हूँ ये दोनों में फर्क क्या है। और हम लोग अगर कोई पेपर तैयार करना चाहते हैं तो इसकी बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कन्वेंशंस मालूम होना जरूरी लगता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ये दोनों का मतलब और इसका एक कॉन्ट्रास्ट भी लेंगे। और मुझे आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है 60 मिनट में आपको मैं समझ रिसर्च पेपर तैयार कैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें से हमारा जो फोकस रहेगा वो ओरिजिनल पेपर कैसे तैयार करते हैं उसके ऊपर रहेगा। यानी मेरे जो टेक्निकल इनपुट्स आज जाएंगे वो जाएंगे ओरिजिनल पेपर कैसे तैयार करते हैं। पर मुझे लगता है कि आपको ये दोनों पेपर के टाइप्स अस्तित्व में हैं और इसका मीनिंग क्या है ये मालूम होना जरूरी है। इसलिए मैं जस्ट आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि ओरिजिनल पेपर और रिव्यू पेपर में फर्क क्या है और बाद में हम लोग टेक्निकल इनपुट्स में जाएंगे, ओरिजिनल पेपर का फॉर्मेट और उसमें क्या क्या लिखना अपेक्षित है। हम लोग बात कर रहे हैं ओरिजिनल पेपर और रिव्यू पेपर के मीनिंग के। वी आर डाउन टू मीनिंग ऑफ ओरिजिनल पेपर।
As you can see, there is 4 pointers. Original papers are empirical studies. Empirical, the dictionary meaning of the word empirical is evidence based. Evidence based का मतलब है कि as a research scholar you have experienced that particular phenomena. You have thrown yourself into the actual field and you have collected data on your own. That data is original in nature. That data was not readily available. As a research scholar, you have collected that particular data. And this data is original in form. This data is considered as first-hand data, you can say. And that is why this is called as primary data. So one line definition of a original paper is these are empirical papers or these are original papers because we are preparing this particular paper by using original data or the data that you as a research scholar have collected on your own. These are original studies because the data was not available anywhere and you have actually generated this particular data afresh. And the third one, this particular research papers can be developed by throwing yourself, means you are supposed to generate your own data and you are supposed to conduct surveys for collecting data or experiments. But typically in educational research, we believe more in conducting surveys, and by conducting surveys, we generate data and that data is considered as primary data. And whenever you are using that particular data that you have generated, and when you are processing it and you are writing paper, such kind of papers are considered as original papers or empirical papers, you can say. We're down to meaning of a review paper. These are theoretical papers, you can say, and this is out and out a desk research, you can say. Desk यानी घर में बैठ के किया हुआ, और यहाँ पे आप कोई भी फ्रेश डेटा जनरेट नहीं करते हैं. वन लाइन डेफिनेशन जो मुझे लगती है आपके रिव्यू पेपर की, इट इज रिसर्च ऑफ अ रिसर्च स्टडीज. जो रिसर्च स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी है उसको फिर से रिसर्च करके एक जगह कंपाइल करना, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिव्यू पेपर कहा जाता है. बिकॉज ओवर हियर वी आर नॉट कलेक्टिंग डेटा. Actually, we are using the data which is being collected by some other research scholar or some other research agencies, you can say. This data is readily available. You are supposed to retrieve it. You are supposed to refer to it and you are supposed to compile it. Whenever you are resorting to, means you are at your home only and you are browsing internet sites and you have been referring to several research papers, you are browsing through your textbooks and whatever literature available, readily available, and you are simply compiling it together and you are developing a research paper. Such kind of research papers are considered as review papers, you can say. So synonymous names for this particular paper is review paper or review article or a literature review, and some authors they have reckoned it as a survey paper as well. These are 2 pointers for defining your review papers. These are secondary source studies. Secondary का मतलब है these are readily available. These papers are based on readily available data, and these are typically considered as secondary data because this data is not generated by you, and this data is not generated by taking into consideration your research needs. ये किसी और ने कलेक्ट किया है उसकी रिसर्च नीड्स को ध्यान में रखते हुए, और वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है. दिस डेटा हैज ऑलरेडी अंडरगॉन प्रोसेसिंग का मतलब है उसका एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, एंड दिस डेटा इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग्स, एंड यू आर simply compiling and collating those particular findings together to come up with your own opinions. So whenever you are carrying out such kind of activities for writing a paper, that particular paper is typically considered as your review paper. So literature review करते वक्त हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा यूज करके अगर आप पेपर डेवलप करेंगे तो दैट पर्टिकुलर पेपर इज कंसिडर्ड एज रिव्यू पेपर. सो दिस इज वन लाइन डेफिनेशन ऑफ अ रिव्यू पेपर और रिव्यू आर्टिकल, यू कैन से. इट्स अ रिसर्च स्टडी ऑफ द रिसर्च स्टडीज जो इससे पहले के रिसर्च स्कॉलर ने रिसर्च किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन, सो उसको रेफर करके आप बहुत सारे पेपर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें से आप कुछ सिंथेसिस कर रहे हैं और उसको समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रिव्यू आर्टिकल या रिव्यू पेपर कहते हैं. कुछ प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं. ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिपोजिटरी आप बोल सकते हैं. एल्सवेयर का नाम आपने सुना होगा और आपका सपना होना चाहिए कि आपका एक पेपर एल्सवेयर में पब्लिश हो. एल्सवेयर का ही एक वर्टिकल है साइंस डायरेक्ट, जैसे मैंने हाईलाइट करके रखा है ऑलरेडी स्क्रीन पे आप देख सकते हो. साइंस डायरेक्ट नाम से इनका एक वर्टिकल है और ये जर्नल है एक्चुअली,
और इसमें अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। इसकी सर्च विंडो में अगर आप रिव्यू आर्टिकल ऐसा टाइप करते हैं तो आपको दिखेगा कि इनके मेन्यू में ही आप लेफ्ट साइड बॉटम में देख सकते हैं, वहां पे आपको आर्टिकल टाइप दिखेंगे और उसमें आपको रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल ऐसा दोनों दिख रहा है और एक नीचे एनसाइक्लोपीडिया भी दिख रहा है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस टू। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जर्नल ने भी इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है कि एक तो रिव्यू पेपर या फिर ओरिजिनल पेपर जिसको हम लोग कहते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि रिसर्च पेपर लिखना है तो फिर कौन सा लिखना है, ओरिजिनल लिखना है या आपको रिव्यू आर्टिकल्स लिखना है। पर ये दोनों पॉसिबिलिटीज है एज ए रिसर्च स्कॉलर। और अगर आप बिगिनर्स है रिसर्च की फील्ड में तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिसर्च पेपर के दो प्रकार होते हैं, रिव्यू पेपर और ओरिजिनल पेपर। अगर आपके पास अपना खुद का ओरिजिनल डेटा ही नहीं है तो इट इज नॉट लाइक दैट यू आर नॉट एबल टू राइट पेपर। You simply resort to desk research, you carry out comprehensive literature review, and then you start summarizing those papers together in the form of the research paper, you can say. So these are two options available with you, and now it is totally up to you what option that you are preferring and you are going with. So obviously data हमारे पास already available होगा और या आप कलेक्ट भी कर सकते हैं तो आप ओरिजिनल पेपर चाहेंगे, पर आपके पास आपका खुद का डेटा नहीं है तो भी आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं जिसको हम लोग रिव्यू पेपर कहेंगे। आप देख सकते हैं सेज पब्लिकेशन एल्सवेयर के साथ साथ सेज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है रिसर्च पेपर के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छी क्वालिटी के जर्नल की अगर बात होती है तो सेज का नाम भी बहुत ऊपर आता है और आप वहां पे भी देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फिर से वैसा ही है। यहाँ पे आप रिव्यू आर्टिकल देख सकते हैं कि इनकी रिपोजिटरी में कितने सारे, लगभग 44,000, और ये मैंने लगभग 1 महीना पहले किया था तो अभी तक ये 50,000 के आसपास इसका नंबर चले गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पेपर और रिव्यू पेपर इनके दोनों की रिपोजिटरीज ये जर्नल्स में है और आपका पेपर कौन सी कैटेगरी में है ये आपको पब्लिशर को बताना होगा, तब जाके उस कैटेगरी में वो आपका पेपर पब्लिश करेंगे। भी बात करते हैं, थोड़ा सा समअप कर लेते हैं अभी तक जो डिस्कशंस किए हैं रिव्यू पेपर और एम्पिरिकल पेपर। 5 पॉइंटर्स मैं आपको दे रहा हूँ, 5 डिफरेंसेस आप बोल सकते हैं जस्ट टू सम अप द थिंग्स। एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर। ओरिजिनल पेपर का सवाल इज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स और एम्पिरिकल पेपर प्राइमरी सोर्स का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था, दिस इज व्हेनेवर यू आर यूजिंग योर फर्स्ट हैंड डेटा, आपका ओरिजिनल डेटा यूज करके जब आप पेपर बनाएंगे तो उसको हम लोग एम्पिरिकल पेपर कहेंगे। और जब आप सेकेंडरी सोर्स या फिर आप लिटरेचर रिव्यू से जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो यूज करके अगर आप पेपर तैयार कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिव्यू पेपर कहेंगे। द सेकंड पॉइंटर, ओरिजिनल पेपर दे प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज, कि यहाँ पे आपका ओरिजिनल डेटा का प्रोसेसिंग करके आप फाइंडिंग्स पुटअप कर रहे हो, और रिव्यू पेपर में एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंथेसिस कर रहे हैं। दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स के रिव्यू पेपर, दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स के पेपर में जो फाइंडिंग्स है उसको यूज करके आप उसको सिंथेसाइज या फिर समराइज कर रहे हैं, उसको हम लोग रिव्यू पेपर कहते हैं। तीसरा है, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग एक तो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर सर्वे कंडक्ट करते हैं या ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम लोग डेटा जनरेट कर सकते हैं। और रिव्यू पेपर में हम लोग लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करके डेटा जनरेट करते हैं। द फोर्थ पार्ट इज, यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी आप प्रोसेस डेटा ही यूज कर रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंटर इज ओरिजिनल पेपर्स फोकसेस मोर ऑन एनालिसिस पार्ट, यानी breaking the whole into the parts, you can say that is one line definition of analysis। और review paper में exactly उल्टा है, over here review papers are focusing more on synthesis, और synthesis का मतलब है assembling parts into a whole, getting it? So this is a big contrast between these two papers। So original papers focuses more on analysis and your review papers focuses more on synthesis, that is data summarization, you can say। We're down to section number 4 now, and over here in section number 4 I'm going to share with you some steps in writing a research paper। So these are 7 steps in this particular sequential order we are supposed to follow while writing a paper। The first part is in the first step you are supposed to select the paper type। जैसे मैं अभी explain कर ही रहा था आपको कि 2 प्रकार के आपके पास options है, रिव्यू पेपर या ओरिजिनल पेपर। फर्स्ट एट द आउटसेट यू नीड टू डिसाइड ऑन कि आपको ओरिजिनल पेपर लिखना है या रिव्यू लिखना है, और वो डिपेंड करेगा आपके पास डेटा है या नहीं है, ओरिजिनल डेटा है या नहीं है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो ऑब्वियसली योर चॉइस इज राइटिंग रिव्यू पेपर, एंड इफ यू हैव गॉट sufficient data, raw data available with you, then you can always go with your original paper। And second, in the second step you are supposed to select your topic। The third part you are supposed to fix your research title,
The fourth part, you are supposed to identify a journal. और यहाँ पे मुझे रिसर्च स्कॉलर जनरली गलती करते हैं. What I have seen and observed over the period, research scholars typically develop a paper and then they start thinking that कि we have to publish it. यानी मैं तो जो recommend कर रहा हूँ वो exactly उल्टी process है. At the outset, you identify कि आपको paper कहाँ पे publish करना है. You visit that particular publisher site. You just go through some current issues of that particular journal. You study those particular papers well. You study the formats which is being prescribed by the journal, and then you study it in a systematic manner. You just get acquainted with the conventions followed or the specifications given by your journal, and then try to develop your paper into that particular pattern or the format which is being prescribed, and then obviously your chances of acceptance will get increased. So in the sixth step, write your paper, and the seventh part is obviously submission part. तो इसमें से जो most important steps है, पहला part तो already step number 1 we are already done with. अभी second, third और fourth को लेके मैं कुछ inputs देने की कोशिश कर रहा हूँ, और fifth part जो है format वो आपके साथ share कर रहा हूँ. टॉपिक सिलेक्शन को लेके कुछ गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ. यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स गलती करते हैं और आपको जस्ट कर रहा हूँ. टॉपिक सिलेक्शन को लेके, रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन को लेके मैं कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी डेवलप कर रहा हूँ. रादर कल रात को ही मेरा एक आर्टिकल ऑलरेडी तैयार हो चुका है. नेक्स्ट वीक पॉसिबली इट विल गेट पब्लिश्ड. आई विल शेयर इट विद यू. सो टू इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू टॉपिक सिलेक्शन. अगर आप पीएटी कर रहे हैं तो टॉपिक सिलेक्ट करना पेपर के लिए बहुत आसान है. As you can see, you just try to break your PhD topic into some appropriate sub-themes. You just try to identify the themes. आपका टॉपिक इतना कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए कि जिसमें से एटलीस्ट 3 से 4 पेपर को भी आपको लिख के आना चाहिए. हाउ टू डू दिस? यू जस्ट ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि आप पीएचडी कर रहे हैं यानी एग्जैक्टली कौन से सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. दीज आर टिपिकली कंसिडर्ड एज रिसर्च क्वेश्चंस. देन ट्राई टू डिवाइड योर रिसर्च क्वेश्चन इनटू सम एप्रोप्रिएट थीम्स, एंड फॉर डूइंग दिस यू जस्ट try to club together the similar objectives which are catering to one particular theme. So research paper लिखने के लिए जनरली हम लोग 2 से 4 objectives लेते हैं. So for the time being, just for the sake of discussion, 3 objectives अगर आप लेते हैं तो एक अच्छा सा research paper तैयार हो जाता है. तो you just try to break your research topic, means PhD topic, into some appropriate sub themes and try to develop a separate paper catering to different themes or categories, you can say. So this is one of the smartest way of identifying a research topic. बात करते हैं अगर आप PhD नहीं कर रहे हैं तो टॉपिक सिलेक्शन कैसे करना एंड व्हाट प्रिकॉशन यू शुड टेक. मेरी तरफ से 4 पॉइंटर्स थे. कल जो रात को मैंने आर्टिकल तैयार किया है उसमें मैंने 7 गाइडलाइंस दी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम 60 मिनट में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो मैं 4 पॉइंटर्स आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त आपने कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. द फर्स्ट वन इज यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन योर एकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें आपने स्पेशलाइजेशन लिया होगा फाइनल सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में. वो स्पेशलाइजेशन कभी सिंगल होता है या कभी ड्यूअल होता है, तो वो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, और इम्पोर्टेंटली आपके इंटरेस्ट के कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक थे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई दोस पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड ट्राई टू स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, यू कैन से. मुझे क्या लगता है आज की डेट में सिर्फ स्पेशलाइजेशन लेके नहीं होता है, आपको डिमांड तभी होगी जब आप सुपर स्पेशलिस्ट है. यानी कल्पना मैम को जब रिसर्च पे सेमिनार लेने की बात हो रही थी तो उनको शायद पहला नाम मेरा इसलिए स्ट्राइक हुआ बिकॉज आई हैव गॉट सुपर स्पेशलाइजेशन इनटू दिस. सो I am preaching all to develop super specialization. आपके नाम के सामने कुछ तो भी एक डोमेन लग जाना चाहिए. Try to identify your domain. आपके पीठ पीछे कौन से चीज की, कौन से सब्जेक्ट की बात होनी चाहिए, आपके पीछे क्या एडजेक्टिव्स लगने चाहिए, इसका डिसीजन तो आपको ही लेना है obviously. So try to identify that particular domain and the adjective that you wish to get recognized. आपके पीठ पीछे अगर लोग बात करते हैं तो आपके पीठ पीछे कौन से सब्जेक्ट आपके नाम के सामने लगने चाहिए, दैट यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई. सो ट्राई टू टेक इनटू कंसिडरेशन. यानी बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं होती. सब लोग कर रहे हैं तो जैसे मैं बहुत बार देखता हूँ कि रिसर्च स्कॉलर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है तो मेरे दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ. दिस पॉसिबली दिस वे वी आर एक्चुअली स्पॉइलिंग अवर सीरीज. हमारा वो डोमेन ही नहीं है तो क्यों वहां पे रिसर्च पेपर लिखना और सबमिट करना और पब्लिश करना. दिस इज व्हाट आई बिलीव यार.
Then the second part is you just try to take into consideration your present nature of activity or nature of work, you can say. आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, आप जो जॉब में उस पर प्रोफाइल क्या है, या फिर कौन से सब्जेक्ट आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उसी को लेके अगर आप रिसर्च पेपर तैयार करते हैं तो शायद हम हमारे सब्जेक्ट के बादशाह बनने की प्रक्रिया में है. Try to super specialized. So try to identify your present nature of activities, what you are doing, what subjects you are dealing with. अगर आप स्कूल या कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने प्लेसमेंट से रिलेट किया जो आपको आपके प्रोफाइल में कुछ कंट्रीब्यूट करे, ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करना चाहिए. जैसे आप अगर प्लेसमेंट्स देख रहे हैं तो आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेके या इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस को लेके कुछ सर्वे करना चाहिए जो आपके खुद के काम में आएगा और आपके कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट एक्टिविटीज करने के लिए आपको मदद हो जाएगी, वो जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स आएगी उसकी वजह से. तो थर्ड पार्ट इज योर करियर. आपको भी मालूम है कि करियर में और एट द आउटसेट ओनली आज भी मैंने थोड़ी देर के लिए बात की थी कि करियर और रिसर्च का मतलब क्या, और आपके रिसर्च के थ्रू आपके करियर में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हो जाना चाहिए. और चौथा पार्ट है योर इंटरेस्ट. मैं तो बोलूंगा इंटरेस्ट से आगे भी एक चीज होती है जिसको पैशन कहते हैं. वो पैशन जानिए आपका कि कौन से टॉपिक को लेकर आपका लगाव है, और ये पहचानेंगे कैसे. ऑब्वियसली करते हैं तो अगर आप एक्साइटेड है उसको लेके तो समझ जाइए वो आपका पैशन है. तो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपके पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, कि जहाँ पे, क्योंकि रिसर्च करना खास करके पीएचडी लेवल के एक्टिविटी के लिए 5-5 साल तक काम करना होता है. इट इज नॉट अबाउट ओनली इंटरेस्ट. यू आर सपोज टू होल्ड योर इंटरेस्ट फॉर 5 years बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 5 long years. तो आपका इंटरेस्ट जो खत्म नहीं होना चाहिए. आज की डेट में एक हाल ही में नासिक में रिसर्च हुआ था और वो रिसर्च स्कॉलर का ही हुआ था. उसमें एक फैक्ट ऐसा सामने आया है कि 70% रिसर्च स्कॉलर उनका पीएचडी या उनका रिसर्च स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट नहीं कर पा रहे. यानी में 5 साल आपको रिसर्च करने के लिए दिए हैं और 100 में से 70 लोग 5 साल में पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाते. उसका एक बड़ा कारण ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट. जो उन्होंने टॉपिक चूज किया है उसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है. तो ऑब्वियसली वो 5 साल या 50 साल भी दे दिए तो शायद वो रिसर्च नहीं होगा. सो ऑब्वियसली your interest matters whenever you are undertaking any kind of research activity. This is one of the important messages from me. Don't write multiple papers on multiple themes. करेंगे आप एक थीम पकड़ लीजिए और उसके ऊपर 50 पेपर्स तैयार करने की कोशिश करिए. 2 नाम मुझे अभी जो स्ट्राइक हो रहे हैं, एक है गाय कावासाकी. गाय कावासाकी एक ऐसा बंदा है जिसने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं इसके रूल्स बनाए हैं. यानी यू जस्ट सर्च ऑन Google and you will find sufficient material on Guy Kawasaki. दूसरा एक नाम जो मुझे अभी याद आ रहा है वो है एडवर्ड टफ्टे. ग्राफ बनाने के नियम क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर छोटी सी एक लाइन पे ये बंदे ने 30 साल तक काम किया हुआ है. आप भी देखेंगे, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको लेके अगर आपको अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए तो मोस्टली हम लोग फॉरेन ऑथर्स पे रिलाय होते हैं. और उसका एक कारण, मैं भी रिसर्च के लिए जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो आई हाईली रिलाय मोर ऑन फॉरेन ऑथर्स, क्योंकि वहां पे मुझे ना बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट जिसको सब्सटेंस कहते हैं वो मिल जाता है. और उसका कारण मैंने भी जानने की कोशिश की ऐसा क्यों है. तो मुझे एक पता चला कि वो लोग एक डोमेन पकड़ते हैं और उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं. और इंडिया में हमने क्या देखा है, एक ही आदमी 4 या 5 सब्जेक्ट की किताबें लिख लेता है या 50 पेपर्स लिखता है तो वो 50 पेपर्स का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं होता है. ये 50 पेपर्स अलग अलग थीम को कैटर करते हैं तो इसकी वजह से हमारा स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं होता है. पर मास्टर ऑफ नन, यू नो. So this way you just try to develop your domain and try to write multiple papers on one particular domain, and then and only then you will emerge as a specialist in that particular domain. ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि रिसर्च पेपर के लिए टॉपिक कैसा होना चाहिए. मुझे लगता है ये एक बेटर इलस्ट्रेशन है. आप ये जैसे पॉट देख पा रहे हो, इसमें डेप्थ नहीं है पर इसकी विड्थ अच्छी खासी है. यानी क्या, यहाँ पे आपका टॉपिक बहुत ही शैलो है और ब्रॉड है. यानी क्या, आप एक रिसर्च पेपर में मल्टीपल इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें डेप्थ नहीं है. और आपका टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए. मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स नहीं भी रहे तो भी चलता है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स नहीं कवर किए तो भी चलता है. योर टॉपिक शुड बी लाइक दिस, नैरो एंड डीप. आप कोई तो भी एक थीम पकड़ लीजिए और उसमें डेप्थ में जाने की कोशिश. यानी बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं ना, या फिर इससे बेटर एग्जाम्पल अभी याद आता है कि आप 5-5 फीट के अगर 10 गड्ढे खोदते हैं तो आपको पानी नहीं लगेगा.
गेटिंग में? अगर आप 50 फीट का ही एक गड्ढा खोद देते हैं तो आपको पानी मिल जाएगा। गॉट द मैसेज ना? कि रिसर्च पेपर के लिए टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत थीन हो और उसमें आपने डेप्थ में जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इट शुड बी नैरो एंड डीप। आप देख सकते हैं एग्जांपल में स्टूडेंट्स बिहेवियर टुवर्ड्स ई लर्निंग, जिसको कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक। ये रिसर्च पेपर का टॉपिक नहीं हो सकता है, यह है पीएचडी का टॉपिक। आप नीचे देख सकते हैं स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ई लर्निंग, ये शायद रिसर्च पेपर का टॉपिक हो सकता है। स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स टू ई लर्निंग एक्टिविटीज इनिशिएटेड बाय स्कूल, ये रिसर्च पेपर का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स बिहेवियर। बिहेवियर इज अ कंपोजिट टर्म। बिहेवियर इज मेड ऑफ सेवरल कंस्ट्रक्ट्स। कंस्ट्रक्ट्स का मतलब होता है बहुत सारी थीम्स है। बिहेवियर में आप परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें बिहेवियर को एड्रेस करती है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, और ऐसे टॉपिक पीएचडी के लिए शायद बेटर होते हैं। पर रिसर्च पेपर के लिए टिपिकली वी आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक थीम and we just get deep into it, and we'll just try to get deep insights into that particular theme topic, you can say. हम लोग 5th सेक्शन में जा रहे हैं अभी, फॉर्मेट ऑफ एन एम्पिरिकल पेपर। ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि रिव्यू पेपर और एम्पिरिकल पेपर ऐसे दो प्रकार हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ टाइम अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एम्पिरिकल पेपर पे ही फोकस कर रहा हूँ। उसका फॉर्मेट क्या होता है, मेरी तरफ से एक टिप तो ये है, एम्पिरिकल पेपर या रिव्यू पेपर पे कोई भी रिसर्च पेपर हो उसको 3 सेक्शन में ब्रॉडली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अपैरेंटली एनी रिसर्च पेपर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 अपैरेंट सेक्शंस, and these 3 apparent sections, as you can see on the screen, the first part is preliminaries, second part is main text, and the third part is your end matter. अभी बात करते हैं कि इसमें preliminaries में क्या आता है, main text में क्या आता है और end matter में क्या आता है। ये टोटल 12 सेक्शंस आते हैं एम्पिरिकल पेपर में। रिव्यू पेपर में सेक्शंस थोड़े बहुत अलग है, तो वो मैं बहुत टाइमिंग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल पेपर के 12 सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से टिप नंबर 1 आज के लिए ये है, अगर रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो आप अपना लैपटॉप या जो पीसी है आपका, उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लेंगे और उसमें ये पूरे 12 के 12 हेड्स आप एक के नीचे एक जस्ट टाइप करके रख देंगे, और ये ब्लैंक फॉर्मेट आप एक हमेशा बना के रखेंगे। जब भी रिसर्च पेपर लिखना है तो ये ब्लैंक फॉर्मेट आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में, एंड यू जस्ट ट्राई टू डेवलप all these 12 sections one by one, and you will realize that in quick time your paper is shaping up. Ready में? So these are 12 sections. As you can see, preliminaries में 4 चीजें आती हैं। रिसर्च का टाइटल यानी आपके रिसर्च पेपर का टाइटल, दूसरा ऑथर्स और उनके एफिलिएशंस, तीसरा पार्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, चौथा पार्ट जो है वो कीवर्ड्स, और मेन टेक्स्ट में आता है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एंड डिस्कशन और कंक्लूजन, और एंड मैटर में आता है रेफरेंसेस, एक्नॉलेजमेंट और अपेंडाइसेस। इसको लेके पूरे 12 हेड्स को लेके एक एक करके मैं इनपुट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहीं पे नोट कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्लाइड मैंने बनाई नहीं है, पर आज की डेट में हम लोग अगर एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं तो इस पर टिपिकली आज की डेट में IMRAD नाम से फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, और रिसर्च पेपर के जो पीयर बोर्ड होता है, जो आपका पेपर एडिटर जो इवैल्यूएट करते हैं सबमिशन के बाद, वो लोग देखते हैं कि आपका पेपर IMRAD फॉर्मेट में है या नहीं है। यानी में IMRAD फॉर्मेट ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, ये जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है। इवन आपने स्कोपस, WOS, ये इंडेक्सेस के जर्नल्स की अगर बात भी सुने होंगे, तो ये सब लोग खास करके सोशल साइंसेस के जो डिसिप्लिन है और एजुकेशन जिसमें हम लोग बिलोंग करते हैं, वो भी सोशल साइंस का ही एक पार्ट है, और सोशल साइंस में भी IMRAD फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। ये 1979 में ये फॉर द फर्स्ट टाइम रोल आउट हुआ था, और आज की डेट में भी इट इज मोस्ट प्रिवेलेंट, यू कैन से, और ये हमको मालूम होना जरूरी है। और ये फॉर्मेट में हमने अगर पेपर बना लिया तो उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ IMRAD, इसका लॉन्ग फॉर्म आप नोट करके रख सकते हैं। I stands for इंट्रोडक्शन, M फॉर मुंबई, M stands फॉर मेथड्स जिसको हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, R stands for रिजल्ट्स, A stands for and, D stands for discussion, IMRAD। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे अभी जो 3 सेक्शंस दिख रहे हैं, प्रिलिमिनरीज, मेन टेक्स्ट और एंड मैटर, इस पे मेन टेक्स्ट पे जो आपको 5 सेक्शंस दिख रहे हैं वो IMRAD ही है एक्चुअली, और उसमें हम लोग सिर्फ एक लिटरेचर रिव्यू का हेड ऐड कर देते हैं। एज यू कैन से
5वें नंबर का जो हेड है वो है इंट्रोडक्शन, दैट इज आई। फिर लिटरेचर रिव्यू, ये कंपलसरी है। कुछ जर्नल्स ये कंपलसरीली करने के लिए बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन, और कुछ जर्नल जो है उनमें कंपल्शन नहीं है लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन डेवलप करने का। उसके बाद आप देख सकते हैं 7वें नंबर पे वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसको कहते हैं एम मेथड्स। और 8वें नंबर पे आप देखेंगे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, RAD। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर मेन टेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज बॉडी, इज कंक्लूजन। अभी एक एक करके हम लोग ये पूरे 12 सेक्शंस पे कुछ इनपुट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीलिमिनरीज में जा रहे हैं हम लोग। 4 हेड्स है इसमें, टाइटल, ऑथर एंड एफिलिएशंस, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड। इसको लेके कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं मैं। इट इज क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव, पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है वो सिर्फ फॉर द टाइम बिंग मैं शेयर कर रहा हूं। बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर टाइटल फिक्सेशन, कि टाइटल फिक्स करते वक्त क्या प्रिकॉशन हमने लेनी चाहिए। देखिए, आप कहीं पे नोट करके रख सकते हैं कि ये सब जो रूल्स वगैरह मैं बता रहा हूँ, इसके लिए ना एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन है रिसर्च में, जिसको कहते हैं साइंटिफिक राइटिंग। इसको लेके किताबें भी है और आपको गूगल पे भी अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। इसको साइंटिफिक राइटिंग कहते हैं। हमने जो 4 रिसर्च डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, ये 4 ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है रिसर्च से रिलेटेड। ये तैयार करने के कन्वेंशंस, इसकी जो गाइडलाइंस है, ये रिटर्न रूल्स है। आपने शायद ISO का नाम सुना होगा, आपने APA का नाम सुना होगा, आपने हार्वर्ड का नाम सुना होगा। इन सब ने इसके ऊपर काम किया हुआ है और इसको लेके नियम बनाए हैं। कि जैसे टाइटल को लेके मैं कुछ नियम अभी बता रहा हूँ आपको, कि मेरा पहला इनपुट तो ये है टाइटल को लेके कि योर टाइटल शुड बी एरर फ्री। एरर फ्री का मतलब है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो गलती किसी भी सेंस में क्यों ना हो, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, पंक्चुएशन मिस्टेक हो, या फिर आपको कैपिटलाइजेशन को लेके हो, या फिर राइट यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस हो, ये सब यू शुड टेक अटमोस्ट केयर ऑफ। 2-3 नियम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो साइंटिफिक राइटिंग में लिखा गया है। टाइटल को लेके एक नियम ये है कि टाइटल के शुरुआत में आप कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। ये टाइटल के शुरुआत में नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बार देखा है, 100 में से 90 या शायद ज्यादा ही रिसर्च स्कॉलर टाइटल की शुरुआत आर्टिकल से करते हैं, ए स्टडी ऑन या ए स्टडी ऑफ। तो वो जो ए लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड एज अननेसेसरी वर्ड। और टाइटल राइटिंग को लेके या ड्राफ्टिंग को लेके एक नियम ये है कि देयर शुड बी नो वेस्ट वर्ड्स इन टाइटल। वेस्ट वर्ड का मतलब है ऐसा कोई भी वर्ड टाइटल में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है, आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दैट यूज ऑफ आर्टिकल राइट अप फ्रंट इज टिपिकली कंसिडर्ड एज वेस्ट वर्ड्स। दूसरा नियम जो है वो है प्रोनाउंसिएशन, आपके प्रोनाउंस को लेके। प्रेपोजिशंस आपके ऑन, ऑफ, फॉर, विथ, टूवर्ड्स, ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस है जो हम लोग टाइटल में यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन को लेके टाइटल में हम लोग जो यूज करते हैं, इसको लेके जो नियम है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका प्रीपोजिशन अगर 3 लेटर से कम का है, 3 लेटर या फिर 3 लेटर से कम है, जैसे ऑन, ऑफ, टू, ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज प्रीपोजिशन है इन टाइटल। ए स्टडी ऑफ हम लोग यूज करते ही है। विथ रिस्पेक्ट टू भी आ जाता है, विथ भी आ जाता है। तो 3 लेटर या 3 लेटर से कम आपके प्रीपोजिशन में है तो उसका लेटर, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज नहीं करते हैं। आपके टाइटल के सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए। उसके लिए एक्सेप्शन ये है कि आपके प्रीपोजिशन अगर 3 लेटर से कम का है, 3 लेटर या फिर उससे कम का है, तो हम लोग वो वर्ड जो है वो कैपिटलाइज नहीं करते हैं। ये तो मैं जस्ट अभी जो मुझे सूझ रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे 10 से 12 नियम मालूम है आपके टाइटल को लेके, पर जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ टाइम मैं अभी वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। पर एक चीज तो मैंने आपको बता दी है कि साइंटिफिक राइटिंग नाम से डिसिप्लिन है जिसमें ये सब बारीकियों को ठीक से एड्रेस किया गया है। नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड की लिमिट है रिसर्च पेपर के टाइटल में। जनरली 15 वर्ड्स के ऊपर आपका टाइटल नहीं जाना चाहिए। बाद में बात करते हैं दूसरा सेक्शन हमारे रिसर्च पेपर के, जिसको कहते हैं हम लोग ऑथरशिप। ऑथरशिप को लेके एक 2-3 नियम मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये 4 चीजें ऑथराइजेशन के सेंस में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आप जब ऑथराइजेशन, ऑब्वियसली ये पेपर किसने तैयार किया है, इसका ऑथर कौन है, यानी ये ओरिजिनेट किसने किया हुआ है और इस ऑथोरिटी किसके पास है, वो बताने के लिए जनरली हम लोग अपना नाम लिखते हैं। वो लिखने के लिए आप सैल्यूटेशंस यूज कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टरेट ऑलरेडी अवार्डेड है तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं, आप प्रोफेसर लगा सकते हैं, आप श्री, मिस्टर, जो भी आपके सैल्यूटेशंस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा है आपका डेजिग्नेशन।
और तीसरा है आपके इंस्टीट्यूट का नाम, और चौथा है यूनिवर्सिटी का नाम भी। ये चारों चीजें ऑथरशिप में आना कंपलसरी लगता है। ये क्यों, आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी के नाम की क्या जरूरत है या फिर कॉलेज के नाम की क्या जरूरत है। हाँ, डेजिग्नेशन तक तो ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप आपका डेजिग्नेशन और आपके कॉलेज का नाम लगाते हैं और यूनिवर्सिटी का भी नाम लगाते हैं, ऑब्वियसली पेपर तो आपने तैयार किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका नाम तो वहां पे है। और जब आपका पेपर कोई पढ़ के आपके पेपर को साइटेशन दे रहा है तो आपका एक इंडेक्स तैयार होता है जिसको हम लोग H इंडेक्स और I इंडेक्स कहते हैं। यानी आपके पेपर की पॉपुलैरिटी कितनी है उसका क्रेडिट जब आपको मिलता है, उसको ऑल्टमेट्रिक स्कोर भी आज की डेट में कहा जाता है। वो स्कोर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना आपको वेटेज ज्यादा है आज की डेट में। ऑल्ट मैट्रिक्स ये कहीं पे आप नोट करके रख सकते हो और मेरा वेबिनार खत्म होने के बाद आप गूगल में चेक भी कर सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका पॉपुलैरिटी स्कोर है कि आपने जो रिसर्च पेपर लिखा है वो कितने लोगों ने आपको गूगल पे वो पर्टिकुलर कीवर्ड डाल के सर्च किया हुआ है, वो गूगल स्कॉलर में लिंक आने के बाद कितने लोगों ने वो लिंक को हिट किया हुआ है, कितने लोगों ने उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है, कितने लोगों ने वो पेपर को साइटेशन दिया हुआ है, कितने लोगों ने वो पेपर दूसरों के साथ शेयर किया हुआ है, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर कहीं पे भी आपका प्रेजेंस जब आ रहा है पब्लिक फोरम में, तो इन सब का एक अकाउंट मेंटेन होता है जिसको हम लोग ऑल्ट मैट्रिक स्कोर कहते हैं और ये आपका पॉपुलैरिटी इंडेक्स माना जाता है। वैसा ही एक इंडेक्स है कि आपकी पेपर को कितने साइटेशंस मिले जिसको हम लोग H इंडेक्स या I इंडेक्स कहते हैं, जिससे आपका रिसर्च वैल्यू जो है वो डेवलप हो रहा है और आपका खुद का रिकॉग्निशन और रेप्यूट तैयार हो रहा है, आपका खुद का एक गुडविल तैयार हो रहा है कि रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में आप कितने ज्यादा माहिर है, ये बताने का वो एक इंडेक्स है। वैसा ही इंडेक्स जैसा इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर का बनता है, वैसा ही हर एक कॉलेज के लिए एक इंडेक्स तैयार होता है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज का रिसर्च का स्टैंडिंग क्या है। इसीलिए कॉलेज का नाम, आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी रिसर्च पेपर में रिफ्लेक्ट होना जरूरी लगता है। और उसके ऊपर की भी बात, यूनिवर्सिटीज का भी रैंकिंग होता है कि हर यूनिवर्सिटी में कितनी हद तक सीरियस लेवल की रिसर्च एक्टिविटी चल रही। तो आप ऑब्वियसली रिसर्च पेपर में यूनिवर्सिटी का भी नाम डालते हैं तो यूनिवर्सिटी में के इंडेक्स में भी आप सम हाउ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने रिसर्च अपनी यूनिवर्सिटी को पॉपुलर करने में। तो ये चार चीजें अपने ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप ऑथर के बारे में लिखेंगे। और एक चीज जो मुझे लगता है कि एड्रेस करनी चाहिए कि अगर दो लोग मिलके, दो या दो से ज्यादा लोग, जिसको हम लोग को ऑथरशिप कहते हैं, दो या दो लोगों से ज्यादा लोग अगर एक ही पेपर पे काम कर रहे हैं तो कौन से क्रम में इनका नाम लिखना चाहिए। तो इसमें ना दो चीजें हैं, एक होता है ओरिजिनल ऑथर और दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग ऑथर। ओरिजिनल ऑथर का मतलब है, जिसको करस्पॉन्डिंग ऑथर कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग ऑथर और ओरिजिनल ऑथर ये फर्स्ट ऑथर जिसको कहते हैं बेसिकली, ये वो आदमी होता है कि जिसने ये रिसर्च पेपर लिखने की सोची है, टॉपिक सिलेक्शन करना, डेटा कलेक्ट करना, जो भी मेजर एक्टिविटी है ना, ये इसने अंडरटेक की है। और जो मेजर काम है रिसर्च पेपर लिखने का, उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, उसको कहते हैं फर्स्ट ऑथर। तो सबसे पहले उसका नाम आना और पीएचडी सुपरवाइजर जो सीनियर है हमसे, उसका नाम बहुत सारे लोग पहले डाल देते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दिस, हम लोग रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं उनको, पर मजे की बात बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पेपर अगर सही में किसी को अच्छा लगा और उसने उसके पेपर में यूज किया, उसके थेसिस में यूज किया, तो ऑब्वियसली वो साइट करेगा आपके पेपर को। तो वो साइटेशन सिर्फ फर्स्ट ऑथर को जाता है, यानी क्या काम आपने किए या होने के बाद भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा और आपका खुद का H इंडेक्स और I इंडेक्स जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से आपने अगर ओरिजिनली बहुत ज्यादा काम किया और सुपरवाइजर ने सिर्फ एडिटिंग प्रूफ रीडिंग किया हुआ है, जो जनरली सुपरवाइजर्स करते हैं, तो उनका नाम जो है वो सेकंड ऑथर में एज ए को ऑथर आप डाल सकते हैं। बात करते हैं थर्ड सेक्शन प्रिलिमिनरीज का, जिसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और रोज ही इंटरेक्शंस होते हैं, ये लॉकडाउन पीरियड में भी मुझे इतने सारे फोन्स आ रहे हैं गाइडेंस के लिए एंड ऑल। तो मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारे लोगों को एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही नहीं मालूम कि क्या है और उसमें क्या लिखना है। तो उसको लेके कुछ गाइडलाइन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं ये बताने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा पौन घंटा लगता है, पर मैं 2 या 3 मिनट में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को लेके, उसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट में एक समरी आपके पूरे रिसर्च पेपर की, आपके स्क्रीन पे एक नॉवेल दिख रही है
आपको अगर कोई नॉवेल परचेस करनी है तो शायद हम लोग वो नॉवेल आगे से ना पढ़ते हुए पीछे से पढ़ते हैं। आप बैक कवर जनरली पढ़ते हैं और उससे ये अनुमान लगाते हैं कि ये नॉवेल को सही में पूरा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। गेट में? यानी क्या, आपका एब्स्ट्रैक्ट, आपके रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट, ये आपके पूरे रिसर्च पेपर की समरी है, और वो एब्स्ट्रैक्ट इतना क्रिस्प और इतना मीनिंगफुल होना चाहिए कि 1 मिनट में पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आपका पेपर उसके काम का है क्या, और उसने वो पूरा पढ़ लेना चाहिए क्या। यानी में सो एब्स्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल दिस पर्टिकुलर पर्पस। यानी ब्रीफिंग करना, 1 मिनट के अंदर अगले को समझा देना कि भाई इसमें ये चीजें हैं और ये तेरे काम की है, तो तू फुल लेंथ पेपर पढ़ सकता है। सो एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द समरी ऑफ योर फुल लेंथ पेपर, यू कैन से। एब्स्ट्रैक्ट लिखते वक्त जो वर्ड की लिमिट रिकमेंडेड 200 वर्ड्स। और मैं इससे ये कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो आप जर्नल आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ पे आपको सबमिट करना है, और हर पब्लिकेशन, हर जर्नल की अपनी गाइडलाइंस होती है। वो गाइडलाइन में एक बार चेक कर लीजिए। पर जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है और मेरा नॉलेज है इन चीजों को लेके, 100 में से 90 लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट की लिमिट 250 से 300 वर्ड की रखी हुई है, और एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट करते वक्त सिंगल पैराग्राफ के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। आपके एब्स्ट्रैक्ट लिखते वक्त आपको 5 पॉइंटर्स याद रखने हैं। ये 5 पॉइंटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या आना चाहिए, तो आपके एब्स्ट्रैक्ट में ये 5 चीजें आनी ही चाहिए, और इसको ये 5 चीजें अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर ली तो आपकी समरी या एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो ठीक 250-300 वर्ड में आसानी से बैठ जाता है। बात करते हैं, ये सेक्शन मैंने लिखे तो है 1 2 3 4 5, पर इनको लेबलिंग करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ पब्लिशर्स इसको लेबल भी करते हैं, पर वैसे लेबल करने की जरूरत नहीं होती। आप इसको रनिंग टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ, और वो पैराग्राफ में ये 5 पॉइंटर्स आप ध्यान में रखेंगे। आपके एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत आपके टॉपिक के इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन को लेके आप 2 लाइंस लिख सकते हैं, 2 लाइंस के ऊपर नहीं। तीसरी लाइन, आपने आपके रिसर्च पेपर का जो बेसिक पर्पस, जिसको कोर ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो आपने एक्सप्लेन कर देना चाहिए। उसके साथ साथ सेक्शन 3 आप रिसर्च मेथोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे कि आपने ये पर्टिकुलर रिसर्च कैसे कैरी लिख सकते हैं। सेक्शन 4 में आप लिख सकते हैं आपकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है, जिस यूज कर सकते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इसके लिए आप 2 लाइंस यूज कर सकते हैं। तो टोटल एक 12 से 15 सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आपका बैठ जाना चाहिए, और आपके जो मेजर पॉइंटर्स जो एक्सपेक्ट करता है रीडर्स, 5 पॉइंटर्स आपको इसी ऑर्डर में अगर आप प्रेजेंट करते हो, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल साइंटिफिक वे में प्रेजेंट कर दिया है आपने, और आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस जो है पेपर के 5 कीवर्ड्स। बात करते हैं कीवर्ड यानी क्या और ये क्यों मांगते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है कि आपके कीवर्ड की आपको क्लूज कहाँ से मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपने जो टाइटल यूज किया हुआ है, वो टाइटल, आपके ऑब्जेक्टिव्स, ये 2 एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपको कीवर्ड से लेके कुछ ना कुछ क्लूज मिल जाएंगे। कीवर्ड का एक मेजर पर्पस ये होता है कि ये जो रिपोजिटरीज होती है, जैसे मैं एल्सवेयर की बात कर रहा था, या सेज की बात कर रहा था, या विले की बात कर रहा था, इसमें ना इनकी जो ऑनलाइन रिपोजिटरीज है, इसमें एक सर्च विंडो होती है। वो सर्च विंडो में जो भी पेपर ढूंढ रहा है, जैसे आप भी खुद अगर ढूंढ रहे हैं कोई पर्टिकुलर पेपर, तो आपको वो सर्च विंडो में, वो ब्राउजर में आपको कीवर्ड्स फीड करने होते हैं। तो जब आप अपने पेपर के कीवर्ड लिखते हो, तो आप एक्चुअली क्लू ये दे रहे हो कि वो सर्च विंडो में अगले ने क्या डाला, तो वो आपके पेपर तक पहुंच जाएगा। सो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स and you are supposed to mention at least 5 words in your research paper after your abstract, you can say। हम लोग जा रहे हैं बॉडी या फिर मेन टेक्स्ट में पेपर के। ये 5 चीजें आपकी बॉडी में आती हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन राइटिंग की। इंट्रोडक्शन राइटिंग में आपको 6 पॉइंटर्स, ये 6 पॉइंटर्स आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो ये 6 मुद्दे आप इंट्रोडक्शन में कवर कर सकते हो, और इसकी लेंथ जो है इंट्रोडक्शन की, ये लगभग 2 पेजेस के आसपास की होती है। आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो शुरू होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट, और यू आर सपोज टू प्रेजेंट इंट्रोडक्शन इन सेपरेट पैराग्राफ्स विदाउट लेबलिंग दिस। आपको ये लेबल करने की जरूरत नहीं होती है।
हाँ, लेबलिंग आप कहाँ पे करेंगे? प्रॉब्लम डेफिनेशन को आप लेबल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को आप लेबल कर सकते हैं, हाइपोथेसिस को आप लेबल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन प्रेजेंट इट इन सिंपल पैराग्राफ फॉर्म्स यू कैन से। मैं बात कर रहा था बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जहां पे आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक यू कैन मेंशन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। दूसरा है थियोरेटिकल बैकग्राउंड, जिसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कहा जाता है, और यहाँ पे आपके जो कीवर्ड्स है उसकी डेफिनेशंस आप दे सकते हैं, उसके मीनिंग जो है आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर कोई थ्योरीज आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो वो थ्योरीज को यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई मॉडल्स आप, जैसे मोटिवेशनल मॉडल्स की बात हो रही है, उसके साथ अगर आप डील कर रहे हो तो मोटिवेशनल जो मॉडल्स है वो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज आउट एंड आउट थ्योरी पार्ट ऑफ योर चोजन टॉपिक यू कैन से। उसके बाद का जो हेड है वो आपके टॉपिक से संबंधित है, वो है द थर्ड पार्ट इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब ये है कि what exactly you wish to say, आप exactly क्या करना चाहते हैं इन ब्रॉड सेंस, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम डेफिनेशन इज। और उसके बाद तुरंत बाद आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, यानी वन लाइन डेफिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव्स और आपके प्रॉब्लम डेफिनेशन की। इन प्रॉब्लम डेफिनेशन वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द इश्यू ऑफ व्हाट, आप क्या करना चाहते हैं इन ब्रॉड सेंस, एंड इन ऑब्जेक्टिव्स यू आर ट्राइंग टू एड्रेस द इश्यू ऑफ व्हाट ऑल, कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, एंड दैट मींस स्पेसिफिक सेंस। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। प्रॉब्लम डेफिनेशन सिंगल पैराग्राफ में होती है और ऑब्जेक्टिव ये स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं, और ये मल्टीपल होते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव्स पे हमने काम करना चाहिए और 4 के ऊपर नहीं जाना चाहिए एज पर एज रिसर्च पेपर राइटिंग पार्ट इज कंसर्न। उसके बाद हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट्स, रिसर्च पेपर के कॉन्टेक्स्ट में 1 या 2 हाइपोथेसिस सफिशिएंट हो जाते हैं। और उसके बाद पर्पस या फिर रैशनल जस्टिफिकेशन आप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, ये कुछ सिनोनिमस टर्म्स है इसको लेके। एंड ओवर हियर वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द इशू ऑफ व्हाई, यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर रिसर्च क्यों कर रहे हैं और इसकी वजह से किसको ये पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी का फायदा किसको होने वाला है, एंड हाउ योर स्टेक होल्डर्स विल गेट benefited, who are your stakeholders importantly, and how will they get benefited out of this particular research. You are supposed to provide a strong rationale for topic selection you can say. एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये देखिए, ये जो 6 आपको दिखाए गए हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपका टाइटल, यानी मैं भी एक पर्टिकुलर जर्नल का एडिटर में हूँ, तो हम लोग टिपिकली क्या देखते हैं, वो पेपर को पब्लिश करना है कि नहीं करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइटल एरर फ्री है क्या, कन्वेंशन के साथ जा रहा है क्या, टॉपिक कंटेम्पररी है क्या, ये देखा जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस क्या है, और ये 3 चीजें बताती है कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। सो व्हाट इशू इज एड्रेस्ड बाय 3 एलिमेंट्स, जिसको कंसेप्ट नोट्स भी कहा जाता है, टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 2 एग्जांपल्स के साथ। एक टॉपिक ले रहे हैं हम लोग जिसका टाइटल है जेंडर डिफरेंसेस इन आईक्यू लेवल्स ऑफ द मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स, अ कंपैरेटिव स्टडी। यानी हम लोग ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर वाइज आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, यानी लड़कों का आईक्यू और लड़कियों के आईक्यू लेवल में, यानी इंटेलिजेंस लेवल में कोई डिफरेंस होता है क्या। ये मुझे जस्ट कल रात को सूझा जब मैं ये पीपीटी बना रहा था, और मुझे सूझने का एक ऑब्वियस कारण ये था कि 10वीं और 12वीं की अगर हम लोग मेरिट लिस्ट देखते हैं पिछले 8-10 सालों की, तो एक पिक्यूलियर थिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया, शायद जो आपने भी की होगी, वो ये है कि आपको मेरिट लिस्ट जो है टॉप 10 में 6 से 7 लड़कियां दिखती है और 3 लड़के दिखते हैं। यानी में इससे तो ये पता चल रहा है कि लड़के ज्यादा होशियार है लड़कों से, ये 10वीं की हो या 12वीं की मेरिट लिस्ट हो। इसमें मेरा जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जिसको डिपस्टिक कहते हैं, वो मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब सही में ये है क्या कि लड़कियों का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है और लड़कों का कम होता है, और क्यों ना इसी के ऊपर एक रिसर्च किया जाए। तो ऑब्वियसली हमने ये टाइटल चूज किया हुआ है कि आईक्यू लेवल लड़कों और लड़कियों का अलग होता है कि कंपैरेटिव स्टडी। इसको लेके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स हम लोग टाइटल को ध्यान में रखते ही डिड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा टाइटल है, हम लोग आईक्यू लेवल को कंपेयर कर रहे हैं जेंडर वाइज, तो इसी थीम को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं जो रिसर्च पेपर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स, जेंडर वाइज ऑब्वियसली। दूसरा जो है वो है टू एसेस आईक्यू लेवल्स, बॉयज और गर्ल्स का आईक्यू लेवल हम लोग मेजर करेंगे बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और आपको मालूम है स्टैंडर्डाइज स्केल्स भी आ जाती है मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, स्टैंडर्डाइज स्केल्स आईक्यू मेजर करने के लिए, वो हम लोग एडमिनिस्टर करके आईक्यू लेवल के पहले कंप्यूटेशंस करेंगे, उसके एवरेजेस कंप्यूट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये 3 ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे
टाइटल को ध्यान में रखते हुए, और उसी से मिलता जुलता तीसरी चीज है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस हमने सिर्फ एक बनाया यहाँ पे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन IQ लेवल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सो बॉटम लाइन ओवर हियर इज कि आपका टाइटल, आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड योर हाइपोथेसिस मस्ट बी इन सिंक, दे मस्ट टॉक अबाउट द सेम थिंग। कि यहाँ पे हम लोग जेंडर वाइज IQ लेवल कंपैरिजन की बात कर रहे थे, और तीनों चीजों में, ये तीनों जो सेट्स है इसमें ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाके रिसर्च पेपर आपका एक्सेप्ट भी होगा और पब्लिश भी होगा। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड EQ। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप एग्जामिन करने की, IQ लेवल और EQ लेवल में सही में कोई रिलेशनशिप होती है, जिसका IQ ज्यादा उसका EQ ज्यादा होता है क्या, ये अगर हमको चेक करना है। तो ऑब्वियसली इस टाइटल को ध्यान में रखते हुए फिर से मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए। तो फर्स्ट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डेमोग्राफिक इकोनॉमिक प्रोफाइल हम लोग जनरली उसके ऊपर डेटा जनरेट करते हैं, करेंगे IQ लेवल और EQ लेवल को मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स की, और उसके बाद फिर हम लोग रिलेशनशिप एग्जामिन करेंगे बाय रिसोर्टिंग टू कोरिलेशन एनालिसिस। इसको लेके हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड EQ लेवल्स। तो एज यू कैन से टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस अगेन आर इन कॉन्ग्रुएंस, यू कैन से। उसके बाद का जो सेक्शन है बॉडी का, वो है लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्वे भी हम लोग इसको कहते हैं। इसको लेके कुछ पॉइंटर्स, लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट करते वक्त हमने कम से कम 8 से 10 रिव्यूज हमने प्रेजेंट करनी चाहिए, और रिव्यू लिखते वक्त और प्रेजेंट करते वक्त आपका अगर 10 पेजेस का कोई रिसर्च पेपर है तो उसमें से 15% जगह जो है, जो स्पेस है, वो हम लोग लिटरेचर रिव्यू को दे सकते हैं। कम से कम आपका 1.5 से 2 पेजेस आप लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात, जब भी लिटरेचर रिव्यू आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको साइटेशंस देना कंपलसरी है और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आपको देना जरूरी है, अदरवाइज वो प्लेगरिज्म में चला जाता है। प्लेगरिज्म को लेकर 10% का रूल है आज की डेट में, 10% तक दूसरे किसी का आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 10% से ऊपर अगर जाता है तो इट इज कंसिडर्ड एज प्लेगराइज्ड, यानी आपने दूसरे किसी का इलीगली कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस हम लोगों को सिस्टम से जनरेट करनी है, उसके लिए हम लोग एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम लोग M.Ed B.Ed कर चुके हैं, तो हमारा डिसिप्लिन एजुकेशन है जो सोशल साइंसेस को बिलोंग करता है। इसमें रिकमेंडेड जो स्टाइल है वो है APA स्टाइल। इसके साथ साथ आप हार्वर्ड स्टाइल, जिसको शिकागो कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, और ये दोनों में से कोई एक स्टाइल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका पेपर एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़। उसके बाद का सेक्शन रिसर्च मेथोलॉजी, इसमें हम लोग 7 हेड्स जनरली प्रेजेंट करते हैं। ये 7 अलग अलग आप 2-2, 3-3 लाइंस कंसिडर करके 2 पैराग्राफ में आप RM को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसपे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको प्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड है। At your research methodology section must start with the type of research design. At the outset only, I have already explained you there are 3 types of research design. The first one is exploratory, the second is descriptive, and the third one is your causal, जिसको कहते हैं experiment based. तो आपने ये 3 में से कौन सा किया हुआ है, that you are supposed to explain. Along with that, you are supposed to write the research approach that you have followed. Approaches 3 प्रकार के होते हैं, qualitative, quantitative, and a combination of qualitative, quantitative. तो आपने कौन सा follow किया हुआ है, that you are supposed to write and mention in one particular line, you can say. Then the second part here that you are supposed to mention is कि आपने research method कौन सी follow की है, तो आपने सर्वे किया है या ऑब्जर्वेशन किया है या किया हुआ है या सेकेंडरी डेटा स्टडी है, 4 में से कौन सा मेथड आपने फॉलो किया है। तो एजुकेशनल रिसर्च में जनरली हम लोग सर्वे करते हैं, तो यू आर सपोज टू मेंशन दैट यू हैव अंडरटेकन अ पर्टिकुलर सर्वे, यू कैन से, एंड यू आर सपोज टू ब्रीफ अप द सर्वे डिटेल्स एज वेल। देन द थर्ड पार्ट इज डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं, क्वेश्चनियर, शेड्यूल और मैकेनिकल डिवाइसेस। ये 3 में से आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ है डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो आपको मेंशन करना अपेक्षित है। उसके बाद रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग आपने किया हुआ है क्या, उसके डिटेल्स। और आज की डेट में अच्छे जर्नल में अगर आपको पब्लिश करना है पेपर और सर्वे बेस्ड है और आपने क्वेश्चनियर बनाया हुआ है, तो उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी करना कंपलसरी है, और उसमें क्रॉन्सबैक अल्फा नाम से एक मेजर आता है, उसका रिपोर्टिंग आज की डेट में अपेक्षित है। उसके साथ साथ आपको करके लिए तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके साथ साथ सैंपल डिजाइन, आपने आपकी टारगेट पॉपुलेशन कौन है उसको, जिसको हम लोग डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन या सैंपल यूनिट भी कहते हैं। दूसरा, आपने कितने लोगों का सर्वे किया है, how many respondents you have surveyed, that is called as sample size. And the third part that you are supposed to mention is sampling procedure. How have you chosen respondent from the available defined target population, you can say. And the last part is contact method. आपका क्वेश्चनर आपके respondent तक पहुंचा,
इसमें 6 मेथड्स आती है, जिसमें आप टेलीफोनिक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर्स, ऑनलाइन मेथड, ऐसे कुछ मेथड्स हैं। इसमें से आपने जैसे कुरियर किया था कि क्वेश्चनियर वगैरह वगैरह, तो आपने मेथड कौन सी यूज की हुई है वो आपको मेंशन करना है, जिसको कॉन्टेक्ट मेथड्स कहते हैं। सिंपलेस्ट लाइन में आपका क्वेश्चनियर आपने रिस्पोंडेंट तक कैसे पहुंचाया वो आपको लिखना अपेक्षित है। उसके बाद लास्ट सेक्शन बॉडी का, दैट इज रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो ऑब्वियसली जो एनालिसिस का पार्ट है, डेटा एनालिसिस का और फाइंडिंग का पार्ट, हम लोग ये सेक्शन में प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद एंड मैटर में 3 चीजें आती है, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस और अनेक्स्चर। देखिए रिसर्च पेपर में एक्नॉलेजमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, थीसिस में ये कंपलसरी होता है। अगर आपका रिसर्च किसी फंडिंग एजेंसी ने फंड किया है तो ही एक्नॉलेजमेंट करते हैं, अदरवाइज एक्नॉलेजमेंट नहीं लिखा तो भी चल जाता है। उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, कि आपने कौन से लिटरेचर रेफर किया, आपने कौन से रिसर्च पेपर्स रेफर किए हैं, आपने कौन से टेक्स्ट बुक, कौन सी वेबसाइट्स को रेफर किया हुआ है, उसकी लिस्ट, जिसको हम लोग बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, वो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आपको यहाँ पे देनी है टुवर्ड्स द एंड, और वो कंपलसरी है और वो एक प्री डिफाइंड स्टाइल में ही होना जरूरी है। मैं आपको बताया कि एजुकेशनल में एक तो हम लोग एपीए स्टाइल, जिसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहते हैं, या फिर हार्वर्ड स्टाइल, जिसको शिकागो कहा जाता है, ये 2 स्टाइल में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। और आपको ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस जो है वो सिस्टम से ही जनरेट करनी है, मैन्युअल यानी हाथ से लिखी हुई आपकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आज की डेट में एक्सेप्ट नहीं की जाती। और उसके बाद अनेक्स्चर, आपको अगर लगता है कि कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जैसे सर्वे बेस्ड रिसर्च में आप क्वेश्चन जोड़ सकते हो, या कोई सपोर्टिंग लिटरेचर जो आपका जो मेन टेक्स्ट है उसको सब्सटेंशिएट करें, ऐसा कोई मटेरियल आप अनेक्स्चर में जोड़ सकते हैं, पर अनेक्स्चर जोड़ना भी कंपलसरी नहीं है। हम लोग लास्ट सेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ से हार्डली 3 या 4 मिनट बाद मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ। पब्लिकेशन करते वक्त आपने क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए पब्लिकेशन कहाँ पे, यानी आप पेपर तो है वो पब्लिश कहाँ पे कर सकते हैं आप, तो कुछ पॉइंटर्स या कुछ सजेशंस मैं दे रहा हूँ। वो पेपर सबमिट करते वक्त आपने अगर सही में इतना ज्यादा मेहनत की है तो वो अच्छी जगह पब्लिश करना मुझे जरूरत है। अच्छी जगह यानी अच्छा रिसर्च पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए मुझे लगता है एक बड़ा क्लू आज की डेट में यूजीसी केयर लिस्ट। आपको शायद सुन के ये मालूम भी होगा कि यूजीसी ने एक स्टैंडर्ड जर्नल की लिस्ट बनाई है जिसको यूजीसी केयर लिस्ट कहा जाता है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो गूगल की सर्च फील्ड में आप चेक करेंगे यूजीसी केयर लिस्ट, जो पीरियोडिकली अपडेट भी होते रहती है। आप एक्चुअली ये पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो है पुणे की, उन्होंने ये लिस्ट अपलोड की हुई है। उन साइट पे ये लिंक है, एक हाइपर लिंक है, वहां पे जाके आप एजुकेशन सर्च विंडो में, यूजीसी केयर लिस्ट की सर्च विंडो में अगर एजुकेशन या सोशल साइंसेस, ऐसे 5 डिसिप्लिन सोशल साइंसेस में आप एजुकेशन अगर सर्च करते हो तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अच्छी क्वालिटी के जर्नल है उसकी लिस्ट मिल जाएगी, और वहां पे आप कोई भी एक रैंडमली जर्नल सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका पेपर अच्छी जगह पब्लिश होने जाएगा। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जर्नल आप आज सिलेक्ट कर रहे हैं पब्लिकेशन पर्पस के लिए, तो क्या वो स्कोपस इंडेक्स है क्या, ये आपने एक बार चेक कर लेना चाहिए। और स्कोपस इंडेक्स है तो उसको हाई क्वालिटी जर्नल कहा जाता है। तीसरा आप चेक कर सकते हो WOS के इंडाइसेस में है क्या। जैसे स्कोपस है, स्कोपस क्या है, ये एक इंडेक्स है, ये जर्नल का एक रिपोजिटरी आप बोल सकते हो। वैसे ही वेब ऑफ साइंस है, ICI है, ये कुछ इंडाइसेस है और इनमें जो पब्लिकेशंस है ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के माने जाते हैं, और आपने ये सिलेक्ट करते वक्त ये पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए। उसके साथ साथ विले, ये भी एक स्टैंडर्डाइज्ड जर्नल है। आप ये जर्नल के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये कुछ क्वालिटी जर्नल्स है, और यहाँ पे अगर आपके पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड जाएंगे। इसमें थोड़ी देर बात भी कर रहा था, सेज पब्लिकेशन से भी रिनोन्ड है, और यूजीसी केयर लिस्ट में आपको और भी अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड जर्नल आपके डिसिप्लिन में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको चेक क्या करना है कि आपका पेपर का पब्लिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है या पेड फॉर्म में है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि यू मस्ट गो फॉर फ्री। स्कोपस में अगर आप पब्लिश करने की सोचते हो और वो पेड फॉर्म में है तो उसमें फीस बहुत ज्यादा महंगी होती है, 6,000 10,000 ऐसी फी होती है स्कोपस इंडेक्स जर्नल में। सो टिपिकली आप जब यूजीसी केयर लिस्ट से ब्राउजिंग करेंगे तो वहां पे एक हाइपर लिंक आ जाती है वो जर्नल के सामने ही। वो लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें नीचे लिख के आता है कि वो पेड है या अनपेड है। अगर वो फ्री होगा तो यू मस्ट गो विथ फ्री, क्योंकि फ्री का वेटेज जो है वो ज्यादा होता है।
बाद में वो जर्नल नेशनल है कि इंटरनेशनल है, ये भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर मुझे लगता है कि वो जर्नल पीयर रिव्यू है क्या। अगर वो पीयर रिव्यू नहीं है तो आपने वहां पे पब्लिकेशन सबमिट नहीं करना चाहिए, आपका पेपर वहां पे सबमिट नहीं करना चाहिए और पब्लिश भी नहीं करना चाहिए। यू मस्ट लुक फॉर पीयर रिव्यू, जिसको स्कॉलरली जर्नल भी कहते हैं। तो मेरे तरफ से ये कुछ पॉइंटर्स थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी चाहिए कि एक बार पेपर सबमिट करने के बाद वो कितना टाइम लगाते हैं पेपर पब्लिश करने के लिए। और इसके साथ साथ एक पॉइंटर मैं ये भी दे रहा हूँ कि आपका पेपर जो है वो पब्लिश होने के बाद ऑनलाइन मोड में रहेगा या ऑफलाइन में रहेगा, यानी वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में पब्लिश होगा या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में इंटरनेट पे जाएगा। जैसे अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, आप आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स ढूंढ रहे हैं, तो एक जो बहुत ही कॉमन ब्राउजर है जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए डेडिकेटेड है, जिसको हम लोग गूगल स्कॉलर कहते हैं। तो गूगल स्कॉलर की सर्च विंडो में ना कोई एक कीवर्ड डालने के बाद आपका पेपर वहां पे आ रहा है क्या, तो वो आएगा कैसे, वो ओपन सोर्स नहीं है, तब तक वो गूगल सर्च विंडो में नाम डालने के बाद आएगा नहीं। तो वो भी आपको इंश्योर करना है, क्योंकि आपका एच इंडेक्स आई इंडेक्स अगर आपको लगता है जनरेट होना चाहिए और डेवलप भी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपने ये एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका जर्नल ओपन सोर्स दे रहा है क्या। इसका मतलब गूगल की सर्च विंडो या गूगल स्कॉलर की सर्च विंडो में नाम डालने के बाद आपका पेपर लोग पा रहे हैं क्या। और स्कोपस इंडेक्स वाले टाइम थोड़े ज्यादा लगाते हैं, 6-8 महीने, 1.5 साल भी लग जाता है पेपर सबमिट पब्लिश होने के लिए। तो मेरी तरफ से ये इनपुट्स थे। मुझे 60 मिनट दिए गए थे पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही ले लिया। I will like to take on your queries if there are Yes, any. thank you very much, sir. Actually, we have spent more than 1:30. Actually, near about we are Okay. about 2 hours. Okay, but anyhow, Oh, means a my very goodness. comprehensive presentation, and it's a need of the hour. So that is why Right. really it is very comprehensive and helpful to all. Only 37 participants are there, and one question is asked by Suyog Dikshit. So Yeah. please, could you please guide about data triangulation? Triangulation. Yeah. Data triangulation. Yes. I am not aware of it. What is data triangulation? So am I going to? Triangulation I am not aware of. Okay. Yes. Any other questions? Hello. Suyog, do you want to ask the question again? Other question? Suyog? No, ma'am. It's perfectly fine. Thank you very much for all the valuable inputs, sir. It was really great to attend the session. Thank you very much for this. My pleasure, sir. Anyone want to ask the question? Please raise your hands. Okay, fine. So thank you very much, sir. And really, you are very energetic because spontaneously you are talking about the research, which is really very difficult topic for us. I know that you have a mastery in that topic, but you already explained it very well. Thank you very much on behalf of DICPD Diet Chandrapur and Zilla Parishad Chandrapur. Thanks a lot, sir. So looking forward Thank to you, ma'am. My seeing pleasure. you another webinar if the participants will request me about it. So I'll definitely get in contact with you. Thank you very much, sir. Sure, ma'am. Thanks a lot. Thank you, sir.